one page to another page, right? So what we have last time, HTML file, there we were sending some field data, and then that data sent to a JSP file, and JSP was catching it, whatever request you're sending. So it was quite straightforward. If you know how implicit objects of JSP works, so you can easily understand that one of the implicit object is request, and request.get parameter, and then you have to pass the username field. This name goes here, and whatever name you have entered here, it will get captured, and later you can use it. So what right now I'm doing, just printing the username. So this was about some uh, one rough idea of how JSP behaves, and definitely we need to understand its um, implicit objects. So we have 9 implicit objects. Rest of the object you guys have to try. Okay, next key or tag is let me open from previous classes to save some time. We have already spent much time here. Next we have to discuss about directives. Okay, these are directives. So these are again some tags. Directive tags. So that's their name, and there are 3 types: page, include, and taglib. Okay, so if you guys have noticed, if whenever you create any servlet, sorry, whenever you create any JSP, ultimately we are getting one directive by default. How? Let's check out. So we have one JSP file in this project, index.jsp. So at the top of the line, if you notice, we have this line, percentile at and then page. So that's what we are talking about, directive tag. This gives you some really important information. Without it, your JSP file cannot be parsed. It cannot be converted or compiled by the web servers. So it goes like percentile sign, then percentage, and then at sign. These 3 things makes it different. कि अगर आपके पास डायरेक्टिव टैग है तो कैसे पहचानोगे बाय दिस. So ending ऐसी क्लोज होगी, पर this at sign makes it okay. These are directive tags. So if you have to use page, so likewise you can use. Now page has multiple attributes. We are talking about here page directive. Okay, so it has language, content type, page encoding. Apart from it, we still have other attributes as well. What you have to do, just go control space and you will get a list of all the possible attributes you can use. So auto flush, buffer, defer type, error page, extends, import, info, and then is el ignored. This is one other thing we will see. Then is error page, is thread safe, session true, and we have like 10 11 attributes which you can use with page directive. The whole idea of using page attribute is to give info about the current page. Why we need this directive? To give info about the current page. That's it. तो आपको अगर करंट पेज के बारे में बताना है तो सिंपली गो फॉर द पेज डायरेक्टिव. तो इसमें हम बता रहे इस करंटली बाय डिफॉल्ट व्हाट फीचर्स वी गेट. लैंग्वेज, दैट बाय डिफॉल्ट वी आर यूजिंग लैंग्वेज, दैट इज जावा. कंटेंट टैब, इस फाइल के अंदर जो कंटेंट होगा वो क्या होगा, कॉम्बिनेशन होगा किसका, टेक्स्ट और HTML का. तो यहाँ पे टेक्स्ट भी है जैसे कि सिंपल टेक्स्ट ये रहा, और HTML टैग्स भी है. इवन यहाँ पर JSP टैग्स भी है जो बेसिक टेक्स्ट कहते हैं हम लोग. तो इससे कॉम्बिनेशन ऑफ टेक्स्ट प्लस HTML. कैर सेट ये एनकोडिंग टाइप है. ये वर्ड की स्टैंडर्ड कोडिंग होती है, बहुत सारी कोडिंग टाइप होती है. तो वन ऑफ द डिफॉल्ट यू कैन से डिफॉल्ट एनकोडिंग फॉर योर कंटेंट टाइप इज कैर सेट. नॉट कैर सेट, कैर सेट इज जस्ट अ फीचर. दिस इज द फीचर ISO 88591. सो इसी तरह बहुत सारे कंटेंट टाइप होते हैं जो रिकग्नाइज्ड हैं वर्ल्ड वाइड. तो बाय डिफॉल्ट JSP ये कैरेक्टर यूज़ करता है, तो इसको हमें चेंज नहीं करना पड़ता. कई बार सर्वर के हिसाब से हमें चेंज करना पड़ता है. सर्वर कई बार ये एनकोडिंग या फिर कंटेंट टाइप समझ नहीं पाता, तो हम इसको चेंज करना पड़ता है कई बार सर्वर के अकॉर्डिंग. पर 99% केसेस आपको नहीं करना पड़ेगा. बाय डिफॉल्ट ये इसी पे काम करता है और मोस्ट ऑफ द सर्वर अंडरस्टैंड दिस. नेक्स्ट जो पेज की एनकोडिंग है वो भी सेम ही होती है, ISO 88591. तो ये समझ लो कुछ ऐसे कि जैसे हमारे पास कोई प्रोडक्ट होता है हम उसको बोलते हैं ना ISO सर्टिफाइड प्रोडक्ट है, तो मतलब ये ठीक है, ये इसमें एक सर्टिफिकेशन है और इसका मतलब ये प्रोडक्ट, ये जो भी चीज़ है वो सही होगा. उसी तरफ से हम यहाँ पे एनकोडिंग देते हैं पेज की कि करंट जैसी पेज है और इसकी एनकोडिंग है, तो इस तरह बिहेव करेगा ये.
जैसे कुछ इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट्स होते हैं, वहाँ पे आपको स्टार्स मिलते हैं, बीएससी के 1 3 स्टार 4 स्टार 5 स्टार। तो उससे हमें पता लगता है कि ओके इसकी कितनी एफिशिएंसी से इलेक्ट्रिसिटी यूज़ करेगा। तो इस तरह से यहाँ पे जब हम किसी लैंग्वेज की बात करते हैं और वहाँ पे एनकोडिंग की बात करें, तो वहाँ पे हम बताते हैं कि क्या क्या उसके फीचर्स हैं और वो किस तरह बिहेव करेगा, या फिर जब वो डेटा रीड होगा तो कैसे कंपाइल होगा, कैसे आगे फर्दर एनकोड होगा वो। इसमें कोई क्वेश्चन? इट्स ऑल अबाउट पेज इंफॉर्मेशन, बाय डिफॉल्ट हमें मिलता है, और इसमें हार्डली कभी आपको चेंज करना पड़ता है, 2 3 फीचर्स को छोड़कर, जैसा कि मैंने यहाँ पे लिखा था। सॉरी, नॉट रॉन्ग प्लेस, इंडेक्स वाइज। मोस्टली हम इसमें से अगर चेंज करते हैं तो यूज़ करते हैं इज EL इग्नोर्ड, इज एरर पेज। तो इसमें से मैं 2 4 देखो जरा, पिछले क्लास में कुछ मेंशन है कि स्क्रीनशॉट पे, इसमें नहीं है। यहाँ पे रखा हुआ, तो मैं सारा यहाँ से पिक करता हूँ, इतना सेक्शन। ओके, सो इस पेज डायरेक्टिव के इतने सारे एट्रीब्यूट्स हैं। तो व्हाट आई सजेस्ट गिविंग यू होमवर्क। सो होमवर्क में आपको क्या करना है, जो रेस्ट ऑफ द एट्रीब्यूट्स हैं उनको ट्राई करिए, देखिए कितना समझ में आता है, कितना आप कर पाते हैं। तो ट्राई बिलो एट्रीब्यूट्स ऑफ पेज डायरेक्टिव। तो इसमें से आप को यूज़ करना है एरर पेज एंड इज एरर पेज। ये दोनों एक साथ यूज़ होते हैं, अकेले यूज़ नहीं हो पाएंगे, इनका कॉम्बिनेशन है। जब हम एरर हैंडलिंग करते हैं तो ये पेज यूज़ करते हैं। तो ये पहला सेट है। दूसरा एक जो होगा वो यूज़ कर सकते हो आप लोग, इज EL इग्नोर्ड। अभी नेक्स्ट जो टॉपिक हम इसी पे डिस्कस करेंगे, तो वहाँ पे EL समझ में आ जाएगा, EL इग्नोर्ड। ओके, और सेशन ट्रू बफर लैंग्वेज कंटेंट टाइप ऑटो फ्लश। ओके, बस इतना ही प्रैक्टिकली आप इतने प्रोग्राम इसी के 2 3 पेज बनाने पड़ेंगे तो समझ आ जाएगा। तो दिस इज अबाउट एरर पेज एंड एट्रीब्यूट्स ऑफ पेज एक्टिव। ये फर्स्ट आपका होमवर्क है, तो इसको ट्राई करिएगा। नेक्स्ट डायरेक्टिव है इंक्लूड। इंक्लूड एक्टिव एज इट नेम सेज कि आपको कुछ इंक्लूड करना है, तभी यूज करते हैं हम लोग। खुशबू, रिक्वेस्ट डिस्पैचर का यूज किया था, किस सिनेरियो में रिक्वेस्ट डिस्पैचर यूज करते हैं हम लोग? पूछ रहे हैं आप? हाँ जी, सर क्वेश्चन क्या है आपका? आपको आवाज नहीं आई? नो। अच्छा विपिन, आंसर करिए क्वेश्चन का। क्वेश्चन अगर सुनाई दिया हो तो। सर जो हम सर जो हम अपने डेटा को किसी और डेटा मतलब किसी और पेज पे सेंड करना चाहते हैं रिक्वेस्ट भेज कर। हम्म, तब हम रिक्वेस्ट यूज करते हैं। खुशबू कहाँ हो, क्लास में रहो। ओके, सो थिंग इज रिक्वेस्ट डिस्पैचर यूज करते हैं हम लोग जब डेटा को या फिर रिक्वेस्ट फ्लो को फॉरवर्ड करना होता है, या फिर रेस्पॉन्स को इंक्लूड करना होता है। तो वहाँ पे हमने रिक्वेस्ट डिस्पैचर यूज किया था, और उसके 2 मेथड हमने देखे थे, इंक्लूड और फॉरवर्ड। सेम काम ये इंक्लूड टैग यहाँ पे करता है। तो इसको यूज करते हैं पहले, फिर इसका यूसेज समझते हैं। डोंट सेव। ओके, तो सेम प्रोजेक्ट है, यहाँ का एक होम पेज बना लेते हैं। होम के छोड़ो, एक इंडेक्स पेज है ना यहाँ पर ऑलरेडी, पर इस तो ऑलरेडी इसमें बहुत कुछ कोड है, लीव इट। लेट्स गेट अ सेपरेट पेज। सो आई एम गोइंग टू यूज अ JSP फाइल, लेट्स से home.jsp। ओके, एंड यहाँ पे क्या करते हैं, एक टैग बनाते हैं पहले तो। सो वी ऑलरेडी नो कि डायरेक्टिव टैग कैसे यूज़ करते हैं। डायरेक्टिव टैग अगर यूज़ करना है तो आपको यूज़ करना है एंगुलर ब्रैकेट परसेंटाइल एंड एट साइन, दैट्स हाउ यूज़ इट। ये चाहिए हमको। तो मुझे इंक्लूड टैग यूज़ करना है, तो एंगुलर ब्रैकेट परसेंटाइल एंड एट साइन, और उसके बाद मैं कंट्रोल स्पेस करूँगा तो मुझे सजेशन आ जाएंगे, इंक्लूड पेज टैग लिप। तो
पेज तो हमेशा टॉप पे रहता है क्योंकि पेज की इन्फॉर्मेशन शो करनी है। इंक्लूड यूज करते हैं और इंक्लूड के साथ एक आता है फाइल एट्रीब्यूट। यहाँ पे आपको उस फाइल का नाम देना है कि किस फाइल को आप इस करंट पेज पर इंक्लूड करना चाहते हो। तो मैं सोच रहा हूँ कि इसमें इंडेक्स पेज नहीं, काफ़ी ज़्यादा गंदा हो जाएगा। लेट्स कीप क्रिएट सिंपल। तो मैं एक एचटीएमएल फाइल बनाता हूँ। आई कॉल दिस फाइल 1 डॉट एचटीएमएल। स्पेलिंग गलती हो गई, फिक्स करते हैं इसको। file1 डॉट एचटीएमएल एंड देन नेक्स्ट इज मैं कर रहा हूँ file2 डॉट जेएसपी। ठीक है, दो डिफरेंट टाइप की फाइल्स है ताकि वो भी क्लियर हो जाएगा कि कैसे काम करेगा। और let's keep it ultra simple, so I'm just adding a one header. Okay, inside file1.html, copy it, close। और JSP में भी सेम टैग लिख सकते हैं क्योंकि JSP इज अगेन जस्ट अ एडवांस्ड वर्जन ऑफ HTML। और यहाँ पे लिख देंगे 2.jsp। ठीक है, तो दोनों फाइल हमने बना दी। अब इन दोनों फाइल का जो कंटेंट हम यहाँ इंक्लूड करना चाहते हैं, तो मैं लिखूंगा यहाँ पर पहले तो कि करंट पेज का नाम क्या है। सो यहाँ लिखते हैं h1 टैग और लिखते हैं इनसाइड home.jsp एंड देन पहले इंक्लूड करेंगे हम लोग file1 file1 html एंड देन 2.jsp। सो गाइज यू कैन सी, पहला मैंने हेडर टैग लगाया करंट पेज के लिए और बाद में दोनों फाइल्स के नाम इंक्लूड किए हैं। अब इससे क्या होगा, जो भी इनके अंदर रेस्पॉन्स होगा या फिर जो भी कंटेंट होगा वो इसके अंदर इंक्लूड हो जाएगा। तो पहले वो समझते हैं इसको कमेंट करके। तो दैट्स हाउ वी कमेंट दिस फाइल। और होम पेज के लिए इसको एक लिंक बना देते हैं इंडेक्स पेज पर, क्योंकि शायद मैंने उसको वहाँ पे कॉल किया होगा। कंफर्म कर लेते हैं web.xml। तो web.xml पे हम लिखते हैं वेलकम फाइल लिस्ट टैग, जहाँ से कॉल करेगा। तो index.jsp आपको मैनुअली लिखना पड़ेगा। index.html बाय डिफॉल्ट अपाचे टॉमकैट समझता है, पर index.jsp आपको मैनुअली कॉल करना पड़ेगा। ठीक है, यहाँ पे कॉल हो जाएगा। यहाँ पे कर देता हूँ होम JSP पेज और उसी के अकॉर्डिंग यहाँ पे नाम देते हैं .jsp। ठीक है, डन। लेट्स रन द सर्वर। सो रन एज सर्वर, नेक्स्ट फिनिश। एक्स्ट्रा प्रोजेक्ट चला गया पर कोई बात नहीं। ओके, होम पेज आ गया। यहाँ पर ये रहा होम पेज का लिंक, इस पर क्लिक किया मैंने तो अभी सिर्फ इनसाइड होम डॉट जेएसपी है। अब जो ये कोड था इसको अनकमेंट करते हैं, या फिर सिर्फ एक रेस्पॉन्स को लेकर आते हैं पहले, वन एट अ टाइम। ठीक है, तो अब अगर ये पेज सही काम करेगा, जेएसपी फाइल है तो सर्वर रिसेट करने की जरूरत नहीं है, वो अपना जो भी चेंजेस है पिक कर लेता है। तो मैं अब इंक्लूड कर रहा हूँ file1.html। फाइल चेंज किया, रिफ्रेश और रिलोड, ये आ गया इनसाइड file1.html। ये यहाँ से आ रहा है। ये इसी तरह अगर नेक्स्ट फाइल को भी कमेंट कर दिया, इसको भी सेव अनकमेंट कर दिया, सेव कर दिया, तो अब जो file2 का रिस्पॉन्स था वो भी इसमें इंक्लूड हो जाएगा। ये तो आइडिया क्या है, इंक्लूड फाइल हम कब यूज करते हैं, जब हम एक सिंपल वेब पेज, थिंक अबाउट इफ यू गोइंग टू क्रिएट एनी वेब पेज, तो आइडियली क्या होता है कि आपके पास एक पेज होगा और उसके मल्टीपल सेक्शंस होंगे। दैट्स व्हाट वर्क्स। ये इसका हेडर सेक्शन होगा, ये इसका फुटर सेक्शन होगा और ये इसका मेन्यू हो सकता है। और मे बी अगर राइट साइड में आप कुछ ऐड या फिर कुछ और एक्स्ट्रा लिंक देना चाहते हो, यहाँ दे सकते हो। तो ये क्या है, यहाँ पर हमने अपने वेब पेज को मल्टीपल सेगमेंट्स में डिफाइन कर दिया। तो आप क्या कर सकते हो, एक होम पेज लोगे और उस पर मल्टीपल पेज को कॉल कर सकते हो। हेडर डॉट HTML फॉर एग्जाम्पल, ये हो सकता है लेफ्ट कह लो या लेफ्ट फ्रेम या वट एवर यू वॉन्ट टू कॉल इट। अभी जस्ट आइडिया दे रहा हूँ क्या कि कहाँ इसका यूसेस हो सकता है। राइट HTML, ये हो सकता है फुटर और सेंटर पे बॉडी। अब ये HTML हो सकता है, JSP हो सकता है, मे बी सर्वलेट भी हो सकता है। तो डिपेंड्स अपॉन रिक्वायरमेंट यू कैन यूज दिस फीचर।
तो यहाँ पे एक होम पेज लीजिए, वहाँ पे मल्टीपल टैग्स इंक्लूड कर लीजिए, और प्रॉपर, क्योंकि यहाँ पे CSS और लगाना पड़ेगा, ऐसे ही कॉल नहीं हो जाएगा, थोड़ा सा फॉर्मेटिंग करनी पड़ेगी, बट जस्ट गिविंग यू आइडिया कि वेयर यू कैन एक्चुअली अप्लाई दिस इंक्लूड फीचर। प्लस और भी फीचर्स हैं, जब रिस्पॉन्स सर्वलेट का आ रहा है वहाँ पे आपको सर्वलेट का रिस्पॉन्स भी चाहिए, प्लस बाकी काम का भी चाहिए। तब ऐसे सिनेरियोज में हम दूसरे पेज का रिस्पॉन्स करंट पेज पे ले आते हैं, ताकि वो पेज इंक्लूड ना हो। एक हमने ऑलरेडी लॉगिन पेज पे देख रखा है हमने, लॉगिन पेज पे हम ये काम कर सकते हैं, इंक्लूड कर लिया पेज को। सो दिस काइंड ऑफ थिंग्स यू विल गेट। ओके, सो दिस इज अबाउट इंक्लूड टैग। आई होप समझ में आ गया होगा, नहीं आया तो आप फटाफट मेरे से पूछ सकते हैं, कोई और क्वेरी या डाउट है रिगार्डिंग दिस। तो ये फाइल 1 था। सर एक बार अगेन इंक्लूड को रिवाइट करिए सर। हाँ ठीक है, अभी रुको, मैं यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ और क्लियर हो जाएगा। तो वी हैव 2 पेजेस, वन इज include डॉट एच टी एम एल, नॉट इंक्लूड, क्या कर रहे हैं, फाइल 1 डॉट एच टी एम एल, और ये होगा फाइल 2 डॉट जी एस पी, और ये रहा होम पेज। ये सारे पेज कॉल कर लिए, and if everything was fine, so we should get this kind of message on our web page. So idea was to include response of other pages in our current page। जो भी response दूसरे पेज का है, या फिर जो भी content दूसरे पेज का है, वो मैं अपने करंट पेज पे लाना चाह रहा हूँ। तो एक पेज था फाइल डॉट एच टी एम एल, दूसरा पेज था फाइल डॉट टू जी एस पी। तो आइडिया बॉस कि ये जो थर्ड फाइल है, मेन फाइल या फिर होम पेज, इस पर मेरे को बाकी पेजेस का रिस्पॉन्स लेके आना है। तो क्या करना है, टैग यूज़ करना है इंक्लूड, और उसका एक फीचर या फिर एट्रीब्यूट कर लो फाइल, ये कर लेना है। तो फाइल डॉट एच टी एम एल यहाँ से आ गया, और नेक्स्ट फाइल डॉट जी एस पी यहाँ से आ गया। तो जो भी इसका कंटेंट था वो निकल के करंट पेज के रेस्पॉन्स पे आ जाएगा। एक यहाँ पे आया, एक यहाँ पे आया, और जो मैसेज प्रिंट हो रहा है वो यहाँ प्रिंट हो गया। तो HTML, HTML और ये HTML, इसको अलग अलग कर देते हैं। इसका JSP फाइल का रिस्पॉन्स ये रहा। फाइल्स भी चलो इसी कलर में डाल देते हैं, और येलो से डाल देते हैं, और जो भी इसका कॉन्टेंट इनसाइड डॉट जेएसपी ये पे आ गया। अब बताइए विपिन, क्या डाउट है? एक बार वेब डॉट एक्सएमएल फाइल ओपन करेंगे, बाकी ये तो सही है, ये तो समझ आ गया सर। कौन सी फाइल? वेब वेब डॉट एक्सएमएल। वेब डॉट एक्सएमएल? वेब डॉट एक्सएमएल सर। इसमें यस। तो ऐसा कुछ नहीं है, कर देते ओपन, लीजिए इंडेक्स पेजेस में, इंडेक्स तो पेज इसमें है। इंडेक्स पेज है। हाँ, और ये रहा इंडेक्स पेज, यहाँ पे मैंने एक हाइपर लिंक बनाया होम पेज का। ठीक है, प्रोजेक्ट का नाम स्लैश ओके योर सर, होम पेज। समझ आ गया। ओके, फ्लो समझना चाह रहे थे कैसे फ्लो हुआ? यस यस। ठीक, ऐसा था होम पेज, ये इसका होम पेज था। यहाँ पे हाइपर लिंक ऐड किया मैंने। अगर गाइस एक चीज़ और चेक कर सकते हो, जब भी आप किसी हाइपर लिंक पे होवर करो माउस को, तो लेफ्ट बटन पे देखो एक बन जाता है पाथ, http:// ttT1 प्रोजेक्ट का नाम स्लैश द करंट पेज। ये रियल प्रोजेक्ट्स में भी काम करते हैं। कोई भी आप वेब पेज ओपन कर लीजिए, अपना नहीं, कोई भी वेब पेज, जब भी किसी हाइपर लिंक पे होवर करेंगे तो आपको एक लेफ्ट बटन पे एक हाइपर लिंक बना दिख जाएगा। तो वहाँ पे आप कंफर्म कर सकते हैं कि वो पाथ HTTP है या HTTPS है। 99% HTTPS ही होना चाहिए। अगर कुछ और है तो मतलब वो साइट सही नहीं है, उस पर कभी मत जाना, बहुत सारे ट्रोजन वायरस होंगे, सिस्टम वहीं बंद कर देंगे आपका। ठीक है, ये सजेशन था। बाकी ये एक और टैग देखा हमने इंडेक्स, सॉरी JSP फाइल पर, कि डायरेक्टिव टैग्स ऐसे काम करते हैं। तो सेकंड डायरेक्टिव वाज इंक्लूड। थर्ड इज एक्चुअली टैग लिब। ये हमें यूज़ नहीं करना। क्यों यूज़ नहीं करना? क्योंकि ये यूज़ होता है कस्टम टैग्स में, जब आप खुद के टैग्स बनाओगे। जैसे अभी हम ऑलरेडी एग्जिस्टिंग टैग्स यूज़ कर रहे हैं, तो जब आप खुद के टैग्स बनाओगे तब यूज़ करते हैं। तो थर्ड टैग इज टैग लिब टैग, टैग लाइब्रेरी कहते हैं इसे। तो यूज्ड विद कस्टम टैग्स। अब बिलीव मी गाइस, दिस इज वन ऑफ द टफेस्ट टास्क। हालांकि पॉसिबल है, करते हैं, करते थे लोग जब ये टेक्नोलॉजी आई थी, खुद के टैग्स बनाना, पर बहुत ज़्यादा टफ है ये। यहाँ पे आपको टैग बनाने के बाद उसकी इम्प्लीमेंटेशन जावा क्लास में देनी पड़ेगी, और दोनों को कनेक्ट रखना पड़ेगा।
जो भी अब तक आपने टैग देखे उनके एक्चुअली पीछे कहीं ना कहीं जावा की इंप्लीमेंटेशन है, तब वो काम करते हैं। ऐसे ये भी काम करता है। कैसे यूज़ करते हैं? क्वाइट स्ट्रेट फॉरवर्ड। अपने किसी भी अगेन जेएसपी फाइल पे जाइए और वहाँ टाइप करिए सेम वे। मुझे डायरेक्टिव टैग यूज़ करना है तो एंगुलर ब्रैकेट परसेंटाइल एंड एट साइन, फिर टैग लिखा। इसके दो एट्रीब्यूट्स हैं, प्रीफिक्स जो कि आपका एक निकनेम होगा, और फिर यूआरआई, ये होगा लोकेशन, लोकेशन ऑफ कस्टम टैग, और ये होगा इसका रेफरेंस। जैसे आप ऑब्जेक्ट बनाते हैं ना, वैसे ही। ओके।